like I'm floating through the air. So hi, welcome to another episode of the IDFit Winter Training Program. And today we'll be training legs. And since I start my day quite early at 6:30 in the morning, so I'm already warmed up with my legs in terms कि काफ़ी ज़्यादा walk कर चुका हूँ मैं सुबह से. और अगर if you want to start your leg workout, you can always start with doing 10 minutes of static cycling. So that's a good way to warm up your legs before you start your leg workout. And since, like I said, I'm already warmed up, I'll be starting my workout with free squats. So, and I think I'll do around 4 sets of 15 to 20 in each set. So let me begin. जो लोग ऑलरेडी एक्सरसाइज करना जानते हैं, दिस इज नॉट फॉर देम, बट दिस इज मोर फॉर बिगिनर्स. व्हेन यू डू दिस एक्सरसाइज, द आइडिया इज दैट योर नी should not exceed the front of your foot. So a lot of times what people do is अपनी नीज को आगे करके फिर वो स्क्वाट कर रहे होते हैं, जो कि बहुत ही गलत तरीका है. It will end up hurting your knees really badly in the long run. So it's a golden rule. आप जब नीचे जाओ, you can see that the alignment of your knee is slightly behind your foot. So let me just turn and show you what I mean. So this is in alignment with this, rather than going ahead. ये पीछे को जाएगा. You need to go down with your hips. So yeah, that's the right way to do free squat. So I'm done with my first exercise, which was my warm-up exercise, free squats, and I moved on to the next one, which is leg extension. और इसके भी अभी जो मेरे फर्स्ट 3 सेट्स होंगे, दोज विल बी वार्म अप सेट्स. सो आई स्टार्ट विद द फर्स्ट वेट, देन द सेकंड एंड द थर्ड. तो पहले 3 सेट मैं इस पर वार्म अप करूँगा, एंड देन आई डू प्रॉब्ली 7 to 8 वर्किंग सेट्स. सो ऑल इन ऑल अराउंड 10 सेट्स ऑफ लेग एक्सटेंशन, एंड दिस इज वेरी नॉर्मल फॉर मी. हाउ आई स्टार्ट माई लेग डे, क्योंकि आई वांट देम टू बी रियली वार्म्ड अप एंड फायरिंग व्हेन आई मूव ऑन टू डूइंग लेग प्रेस और सम अदर बिग मूवमेंट विद माई लेग्स. So 7 to 8 sets of leg extensions is how I warm them up. So let me begin with this. जो warm up sets रहेंगे उसमें I'll aim for 15 to 18 reps, and as I start my working sets, I'll sort of decrease the reps to like 12, 10, 8, so on and so forth. One more information about this exercise is that when you're doing it, try not to slouch too much. What people do is they slouch like this, and there is a big gap between the machine and their back. So the idea is to keep your back upright like this, and when you जब आप leg extension करते हो अपनी, तो focus on the squeeze and try and hold it for not more than 2 seconds, but something between a second and 2 seconds. So something like this. When you do this, आपके quads अच्छे से एक्टिवेट हो जाते हैं, एंड देन व्हेन यू इंक्रीज द वेट आपको आसानी होगी. अगर आपके quads एक्टिवेट नहीं होंगे, अगेन यू विल बी स्लाउचिंग एंड ट्राइंग टू पुश द वेट विद रेस्ट ऑफ योर बॉडी एंड नॉट विद योर quads. So this is a quad centric exercise. The idea is to use maximum of your quads, not the rest of your body. So I'm now doing my 5th set of this exercise. 5वां सेट करने जा रहा हूँ मैं. And my quads are nice and warm now. So the thing to see in this set is that मेरा जो range of motion है वो उतना ही रहेगा जो मेरा starting set पे था. So the whole idea is that till the very end, even when I'm doing the full rack, my range of motion is not compromised. So a lot of times people are just pushing weight without focusing on the range of motion, without focusing on the fact that ये कहाँ की exercise आप कर रहे हो. The idea is not to sort of पूरा आप मशीन को ऐसे पकड़ के जकड़ के और फिर आप कोशिश करोगे कि मैं पूरा रैक कर लूँ या मैं मैक्सिमम वेट मार लूँ. दैट विल नॉट हेल्प यू आउट इन द लॉन्ग रन. सो जस्ट फोकस ऑन द रेंज ऑफ
7th सेट पे विच इज़ माई सेकेंड लास्ट सेट और वेट ठीक ठाक बढ़ चुका है और रेप रेंज में थोड़ी कम रखूँगा इस सेट में सिंस आई विल बी लिफ्टिंग इवन मोर heavier than this in the next one. So let's do this. बैक की पोजिशन आप देख सकते हो, देयर इज नो गैप, जितना आप हाइट में रह सकता हूँ थोड़ा सा तो ऑब्वियसली गैप आएगा बट बहुत ज़्यादा नहीं। So और मारेंगे अभी। तो हमारे लेग एक्सटेंशन के 3 वार्म अप प्लस 8 एक्टिव सेट्स हो गए हैं एंड नाउ नेक्स्ट एक्सरसाइज दैट आई एम डूइंग इज लेग प्रेस, जिसका मैं ऑलरेडी एक सेट कर चुका हूँ। आई स्टार्टेड विद 105, दिस इज़ 125। कोशिश रहेगी हर सेट में 20 से 25 किलो बढ़ाऊँ मैं एंड आई विल प्रॉब्ली डू 5 सेट्स ऑफ दिस। और क्योंकि मैंने लास्ट टाइम ये एक्सरसाइज हेवी की थी तो इस बारी मैं इस पर बहुत ज़्यादा वेट नहीं मारूंगा, अराउंड 200 मार के छोड़ दूँगा। एंड द रीज़न फॉर दैट इज़ दैट मैं अपने लेग वर्कआउट्स में ऐसे ऑल्टरनेट करता हूँ। अगर एक हफ्ता में हेवी वर्कआउट करता हूँ तो नेक्स्ट वीक में थोड़ा सा कंपैरेटिवली लाइट वर्कआउट करता हूँ। एंड इफ 1 वीक आई एम फोकसिंग मोर ऑन माई क्वाड्स देन द नेक्स्ट वीक आई फोकस मोर ऑन माई हैमस्ट्रिंग्स। सो क्योंकि मुझे इतना टाइम हो गया वर्कआउट करते हुए, 14-15 साल हो गए हैं, और मैंने अपना वर्कआउट स्प्लिट जो है वो हमेशा सिंगल बॉडी पार्ट रखा है। सो आई डोंट डू डबल बॉडी पार्ट स्प्लिट्स, 3 बॉडी पार्ट स्प्लिट्स, पुश पुल वट एवर, आई डोंट डू ऑल दैट। मैं एक हफ्ते में एक बॉडी पार्ट एक ही बार मारता हूँ। सो इट बिकम्स रियली इंपॉर्टेंट फॉर मी दैट मैं अपना ट्रेनिंग थोड़ा थोड़ा चेंज करता रहूँ, बिकॉज इफ आई कीप डूइंग द सेम थिंग ओवर एंड ओवर अगेन माई मसल्स विल स्टॉप रिस्पॉन्डिंग, दे विल स्टॉप ग्रोइंग। So for my muscles to keep growing and keep responding, I have to hit them from different angles and different ways. So this is one way which I have revised, that अगर मैं एक हफ्ता heavy training करूँगा legs की तो next week में थोड़ा comparatively light weight मारूँगा। I'll maybe do more sets, more number of exercises, और maybe I'll put in some angle which I normally don't hit. कोई ऐसी exercise मैं बीच में डाल लूँगा जैसे step up हो गई या lunges हो गए या stiff leg deadlifts हो गए, so something which I normally don't do in my big movements of leg exercises. So yeah, so let me do this. This is my second set for leg press. So nice and firm, जो footing है आपकी, जितना एक मेरे को किसी ने सिखाया था शुरू में कि जब भी आप कोई वेट कर रहे हो, चाहे आप मशीन पे हो चाहे फ्री वेट पे हो, जितना टाइटली आप वेट को ग्रिप करोगे उतना वो आपके मसल पे आएगा। So same logic applies in this exercise. Your legs cannot be loose, your grip has to be tight and they need to be flat, and then you just lift. कई लोग क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा नीचे आते हैं, so their knees are like touching their stomach, वो भी गलत है। और कुछ लोग ये ऐसे हाफ मोशन मार रहे होते हैं, वो भी गलत है। बिकॉज वेट ठीक ठाक है तो आई कैन नॉट शो यू बोथ द रॉन्ग मोशन, आई कैन शो यू द राइट वन, सो हैव अ लुक। So we'll keep increasing the weight by 20 or 25. तो अब हम आ गए अपने सेकेंड लास्ट सेट पे एंड एज यू कैन सी कि हमारा वेट स्टैक पूरा हो चुका है। सो देयर इज समथिंग इनोवेटिव दैट वी डू टू इंक्रीज द वेट। वैसे कुछ इतना भी इनोवेटिव नहीं है, हर जिम की अपनी मशीन होती है और हर मशीन का अपना जुगाड़ होता है, तो ये हमारा जुगाड़ है। तो ये हमारी फोरआर्म मारने का रॉड है, इसको हम यहाँ डालते हैं ऊपर। तो इसका जो वेट लगाने का जो डंडा होता है, रॉड होती है, वो इंक्रीज हो जाती है उसका साइज, एंड देन वी स्टैक मोर वेट ऑन दिस। और अगर मैं वेट मारने की बात कर ही रहा हूँ तो आई वांट टू शेयर समथिंग विद यू दैट लॉट ऑफ टाइम्स पीपल कम टू मी एंड दे टेल मी कि सर हमारा कोई फ्रेंड है फलाने जिम में और वो वहाँ पे लेग प्रेस पे 500 किलो मार रहा है, 450 किलो मार रहा है, 400 किलो मार रहा है, और उनको भी बिलीव नहीं होता। मैं तो खैर बिल्कुल ही बिलीव नहीं करता, बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज़ कि आजकल की जो मशीनें आ गई हैं उन पे 400-500 किलो मारना बहुत सिंपल हो गया है। ये हमारी थोड़ी सी ओल्ड स्कूल मशीन है, और जो भी लोग कहते हैं कि हम लेग प्रेस पे अच्छा 450-500 किलो मारते हैं, उनको मैं चैलेंज देता हूँ कि वो इस मशीन पे आके 250 किलो मारें
और उन्होंने अगर वो कर दिया तो मैं जेन्युइनली खड़ा होकर उनके लिए क्लैप करूँगा, एंड आई एम नॉट बीइंग सार्कास्टिक। सो द होल पॉइंट ऑफ दिस इज दैट जो आजकल मशीनें आ रही हैं, इसका अगर आप एंगल देखो, सो दिस इज द एंगल फॉर डूइंग लेग प्रेस। आजकल फॉरवर्ड मोशन वाली मशीन आ गई हैं जिसपे सिर्फ आपको वेट सामने पुश करना है, विच इज़ वेरी ईजी, और उसमें भी वो मशीनरी इतनी इवॉल्व हो गई है कि दैट मशीन इज डूइंग हाफ योर वर्क। सो द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज दैट आप जब भी वेट ट्रेनिंग करते हो तो देर आर टू रीजन वाई यू डू वेट ट्रेनिंग, आइदर टू अप योर स्ट्रेंथ विच इज स्ट्रेंथ बिल्डिंग और टू इम्प्रूव योर मसल। आपको अपने मसल की क्वालिटी अच्छी करनी होती है, मसल को डेवलप करना होता है। आप यू वांट योर मसल शुड शो, दैट मसल फाइबर शुड शो और मसल सेपरेशन शुड शो। तो ये दो रीज़न से आप वेट ट्रेनिंग करते हो। ईगो लिफ्टिंग का इसमें कोई काम नहीं है। अगर आप अपनी ईगो को बड़ा करने के लिए वेट ट्रेनिंग करते हो तो फिर आप अपना बेवकूफ़ खुद बना रहे हो और इन टाइम आप एक्सपोज हो जाओगे। सो इट्स अ गोल्डन रूल दैट व्हेन यू वॉक इनटू अ जिम, कीप योर ईगो ऑन द डोर स्टेप। आप दरवाजे के बाहर अपनी ईगो छोड़ के आओ। स्ट्रेंथ बिल्डिंग के लिए आप वेट ट्रेनिंग करो, मस्कुलर गेन्स के लिए, मसल इंप्रूवमेंट के लिए आप वेट ट्रेनिंग करो। ईगो गेनिंग के लिए आप वेट ट्रेनिंग मत करो। ईगो बड़ी करके आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। और जो ऐसे लोग होते हैं जो बोलते हैं कि हम फलाना वेट मार लेते हैं, ढमकाना वेट मार लेते हैं, एंड देयर इज़ नो ऑथेंटिसिटी टू इट, वो बहुत जल्दी एक्सपोज होते हैं। लॉट ऑफ टाइम्स व्हाट विल हैपन इज दैट समवन who has actually been lifting good weight with good form for a long time will come in and make you look like a fool. जो वेट आप बोस्ट करते हो कि मैं 120 किलो की बेंच मार लेता हूँ या मैं 150 किलो की बेंच मार लेता हूँ, कोई ऐसा बंदा आपको टकरेगा एक बारी लाइफ में जो आके उतने वेट से शायद अपना सेट स्टार्ट करेगा और उतने वेट पे 10 रेप मार के वो वेट वहीं छोड़ के जाके उस पर और वेट लगा लेगा, एंड ही विल नॉट इवन लुक ट्वाइस बिकॉज ही इज़ अ सीरियस लिफ्टर, ही इज़ अ सीरियस जिम गोअर. He doesn't go to the gym to boost or to sort of boost his ego. So ego boosting and ego बड़ी करने से आपके मसल पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला. आप हफ्ता दर हफ्ता, मंथ दर मंथ, साल दर साल वही एक्सरसाइज करते रहोगे और लोगों को आप बोलते रहोगे कि मैं फलाना वेट मारता हूँ, ढमकाना वेट मारता हूँ, और वो आपकी बॉडी पे कहीं शो नहीं करेगा. So make sure if you're telling someone that I am able to lift this much weight and do these many sets and reps, then you better back it up. So you better back your bullshit up, and then it doesn't remain bullshit. So yeah, so let me do this set. Increase the weight further. I'll probably do 2 more sets of this, end up close to 200, 210, and that's it for leg press. तो हमारे leg press के sets सब पूरे हो गए हैं, and we did around 6 sets of leg press, and now we are moving on to doing leg curls. and मुझे ये exercise बहुत पसंद है. एक टाइम था जब मैं exercise बहुत करता था. I used to play cricket actively that time, and for a fast bowler it's essential that you have a nice big firm ass. तो इसका यही काम होता है, इट मेक्स योर एस फॉर्म और आपके हैमस्ट्रिंग टाइट करती है ये. तो आज भी मुझे एक्सरसाइज बहुत पसंद है, बट मैं ज़्यादा फोकस अपने कॉर्ड्स पे रखता हूँ बिकॉज मैंने बहुत साल जब क्रिकेट खेला तो मैंने कॉर्ड्स की ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा नहीं की बिकॉज इट वुड हैव हैम्पर्ड विद माई क्रिकेट ऑन द ग्राउंड ट्रेनिंग. तो कॉर्ड्स की इतनी ट्रेनिंग नहीं की इतने साल मैंने. सो नाउ आई फोकस मोर ऑन माई कॉर्ड्स. हैमस्ट्रिंग मेरे ऑलरेडी ठीक ठाक डेवलप हैं इतने साल क्रिकेट खेलने के बाद, तो मैं थोड़ा बाद के लिए रखता हूँ इस एक्सरसाइज को अपने लेग रूटीन में. बट मैं मारता ज़रूर हूँ. 6 से 8 सेट इस एक्सरसाइज के हर रूटीन में रहते हैं, चाहे मैं कॉर्ड्स की रूटीन कर रहा हूँ, चाहे मैं हैमस्ट्रिंग की रूटीन कर रहा हूँ. आई डोंट लीव दिस एक्सरसाइज, आई रियली लव इट. सो आई डू 6 सेट्स ऑफ दिस. लेट मी बिगिन. Nice.
तो 5 सेट हमारे हो गए लेग कर्ल के. आई एम ऑन टू माई लास्ट सेट विच इज़ माई 6th सेट एंड आई विल ट्राई एंड गो फॉर 10 reps इवन इन माई लास्ट सेट. आई थिंक दैट्स अ गुड नंबर टू डू. ऑलरेडी हम 10 सेट एक्सटेंशन 6 सेट लेग प्रेस के मार चुके हैं. सो लेट मी डू दिस. So those were my 10 reps on my last set of leg curl. So I'll move on to my next exercise now. So I'm on to my next exercise, which is narrow stance elevated dumbbell squats. And since I'm focusing more on my quads today, this is my third exercise which will focus on my quads. और ये इंडिया में मैंने नहीं देखा, बट बाहर अगर आप फॉरेन इन्फ्लुएंसर्स को फॉलो करते हो तो यू वुड हैव सीन कि बाहर एक वो लोहे का ऐसा एंगल बनवाते हैं, समथिंग सिमिलर टू इफ यू कैन सी दिस टूल. तो इसी हाइट का रहता है और थोड़ा आगे को ढलान रहती है उसमें. तो सिंस हमने वो नहीं बनाया हुआ तो दिस इज़ माई देसी जुगाड़ फॉर क्रिएटिंग दैट एंगल. एंड सो दिस इज़ हाउ आई स्टैंड ऑन इट. दिस इज़ हाउ यू होल्ड द डंबल एंड देन यू गो डाउन. ये पूरा आपके quads पे आ रहा है. I cannot feel anything on my hamstrings. This is totally coming on my quads. You can also see my range of motion. जितना नीचे मैं जा सकता हूँ मैं उतना नीचे जा रहा हूँ. Squat मारते हुए saying होती है as to grass. So this is what as to grass is. There is no grass, but this is what we mean when we say as to grass. So I'll do 4 to 5 sets of this. I'll increase the weight in each set. तो मैं अभी अपना पिछला वीडियो देख रहा था जो क्लिप बनाई है इससे पहले वाली, और उसमें एंगल इतना ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था. सो आई एम जस्ट शोइंग यू व्हाट एंगल आई एम टॉकिंग अबाउट, एंड वंस यू सी दैट एंगल देन आई विल डू माय नेक्स्ट सेट. सो दिस इज दैट एंगल आई एम टॉकिंग अबाउट. एंड आई एम श्योर इन योर जिम और इन योर हाउस देयर इज सम प्लेस जहाँ पे आपको ये एंगल मिल जाएगा अगर आपने narrow stance elevated dumbbell squat मारने. So let me do my next set now. I hope you can make out the angle when I stand. थोड़ा steep है and it is supposed to be this steep. तभी आपके quads पे आएगा ये. अब जो मेरे feet कितने wide हैं, they are quite narrow. मतलब मेरे shoulder की जो लेंथ है, ब्रेथ है सॉरी, उससे काफ़ी अंदर है. सो या I have to be careful when I get off because my legs are already slightly tired and this angle is very steep. So yeah, we're done with 2 sets. I'll do 2 to 3 more sets of this. So हमें already 1 घंटा 20 मिनट हो गया है वर्कआउट करते हुए, and we started at around 10:40. आप देख सकते हो 12:05 हो गए हैं और मैं थोड़ा लेट हो गया हूँ. मेरे को 12 बजे कहीं आज बहुत ज़रूरी पहुँचना था. तो आई एम गोइंग टू क्विकली रैप दिस अप एंड आई विल डू सम स्टैंडिंग काफ रेजेस और उसका एक वेरिएशन में करूँगा जो मैं आपको दिखा रहा हूँ. सो यू कैन फिनिश योर वर्कआउट विद सीटेड काफ रेजेस और स्टैंडिंग काफ रेजेस विद वेट्स ऑन द स्मिथ मशीन. बट बिकॉज मेरे पास टाइम कम है और बार बार वेट लगाने में निकालने में मैं टाइम ख़राब नहीं करना चाहता, सो आई विल डू जस्ट 2 सेट्स ऑफ दिस. एंड इसके जो 2 सेट हैं वो बाकी में 4-5 सेट के बराबर हैं. बिकॉज वॉट यू डू इज़ यू डू 60 to 70 reps in 1 set और आप 3 एंगल पे अपने काफ को मारोगे इसमें. सो यू स्टार्ट विद द स्ट्रेट एंगल विच इज़ दिस.
सो 20 reps ऑफ दिस। उसके बाद फिर आप एंगल चेंज करोगे आउटवर्ड, पैर आप अपने आउटवर्ड करोगे एंड देन यू हिट देम अगेन। और जब आप ऊपर आते हो तो आप माइनर 2 सेकेंड का होल्ड करोगे, नीचे जाते हुए ऊपर आते हुए आप होल्ड करोगे, अपने काफ को स्क्वीज करोगे। सो देन 20 reps ऑफ द आउटवर्ड एंड देन अगेन यू चेंज इट एंड मेक इट इनवर्ड। सो ये आपको सबसे ज़्यादा फील होगा, सबसे ज़्यादा स्ट्रेन काफ का आएगा जब आप इनवर्ड करोगे। आई कैन ऑलरेडी फील इट। मैंने 20 नहीं मारे हैं, आई थिंक 12 मारे हैं, बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू शो यू विच आर द 3 एंगल्स। सो 2 से 3 सेट अगर आप इसे कर लोगे, योर calves will be on fire. The day you don't want to put weight while doing calves, this is the next best option. Next best भी नहीं है, ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। तो यू कैन ऑलवेज ऑल्टरनेट विद दिस, कि एक हफ्ता आप वेट से ट्रेन करो अपने काफ और एक हफ्ता आप ऐसे फ्री ट्रेन करो। सो दैट्स इट फॉर मी। आई डू 2 more sets of this and that will end my leg workout for today. I hope you enjoyed this video and I hope you are looking forward to the videos I'll be making in the future. Hopefully आपको मज़ा आ रहा है वीडियो देख के, और जो भी आपके कमेंट्स हैं, आपका फीडबैक है, प्लीज़ ड्रॉप दैट, लेट मी नो व्हाट मोर यू वुड वांट मी टू शो यू। वैसे तो मेरे पास ऑलरेडी 4-5 आइडिया हैं अपने अगले वीडियोज़ के लिए, बट स्टिल इट्स ऑलवेज गुड टू गेट फीडबैक फ्रॉम द पीपल। सो कीप गिविंग योर फीडबैक, सब्सक्राइब टू द channel if you haven't already, share it with friends and family, with people who go to the gym, who are into fitness, who really want some in-depth knowledge, some raw, first-hand experience of how you can do different workouts and how you can have fun while doing your workouts, no matter how intense they are. So I'll see you soon with another vlog. Thanks so much.